Good morning, all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today, I am going to solve numericals of chapter short-term equilibrium output. Already, I taught you mechanism of multiplier and concept of multiplier. What are the relationship between MPC and MPS, and what are the relationship between APC and APS. So now, let us start solve the numericals. Question: in an economy, investment increases 300 to 500 as a result of this equilibrium level of income increases by 10,000. Increases by 20,000. Calculate the margin propensity to consume. Calculate marginal propensity to consume. Okay. Question are given: in an economy, investment increases 300 to 500 as a result of this equilibrium level of income increases by 20,000. Calculate the marginal propensity to consume. This is the question. There are given first find the change of investment. First, we find change of investment equal to final investment minus initial investment, equal to 500 minus 300 get 200. This is change of investment. Final investment is given 500 and initial investment is given 300, and change of income is given 20,000. Change of income equal to 20,000. You know that multiplier P equal to delta y upon delta I, means change in income upon change in investment. Put the value of change of income 20,000 upon 200. Both are cancel out, इक्वल टू आपका होगा इसमें, सॉरी इनकम इज गिवन 22,000. Income is given 2,000. So multiplier P equal to 10. There are in an economy, investment increases 300 to 500. As a result of this equilibrium, level of income increases by 2,000. Calculate marginal propensity to consume. Change of income is given 2,000 and change of investment. First find the change of investment. Change of investment equal to final investment minus initial investment. Final investment gives 500 and initial investment
then we find multiplier equal to change of income upon change in investment. 2000 upon 200 से डिवाइड कीजिए, 20 कैंसिल आउट, 20 upon 2 करेंगे, आपका मल्टीप्लायर इक्वल टू हो जाएगा 10. You know that multiplier इक्वल टू 1 minus 1 upon 1 minus MPC. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो 10 इक्वल टू 1 upon 1 minus MPC. यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आपका हो जाएगा 10 MPC minus 10 इक्वल टू 1. ये आपका 10 MPC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपका इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको हो जाएगा, इसको ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका या इसको हम कर सकते इस तरह से करेंगे कि आपका हो जाएगा इसमें 10 minus 10 MPC इक्वल टू आपका हो जाएगा 1. अब इसको आपका minus 10 MPC इक्वल टू 1 minus 10, तो minus 10 MPC इक्वल टू minus 9. 9 बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका MPC मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इक्वल टू आपका हो जाएगा 9/10. डिवाइड करेंगे तो आपका 0.9 आएगा आंसर. यहाँ पे देखो एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं आपको. इन ए क्वेश्चन देयर आर गिवन फाइनल इन्वेस्टमेंट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट यू फाइंड द चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट. चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फाइनल इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. फाइनल इन्वेस्टमेंट गिवन 500, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन 300. The difference between both investment, get you have 200, change of investment and change of income is given 2000. So you know that multiplier is always denoted by small k. Multiplier equal to change of income upon change of investment. Put the value of change of income is 2000 upon value of, इसमें हम लोग देखो 2000, इसकी वैल्यू होगी 2000 upon 200, डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा. मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फाइंड करेंगे हम, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी. यू नो दैट इसमें देखो मल्टीप्लायर और आपका इसमें एमपीसी में दोनों में आपका रिलेशनशिप होता है, तो मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होगा. अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे देखिए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या आपको हो जाए 10 minus 10 एमपीसी इक्वल टू 1. इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आपका माइनस 10 एमपीसी इक्वल टू 1 minus 10. बोथ साइड आपका नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा 9/10. तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम आपका हो जाएगा 0.9. अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो पहले हम लोग मल्टीप्लायर फाइंड करेंगे. मल्टीप्लायर फाइंड होगा, उसके बाद हम लोग एमपीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, इसमें हम आगे इसको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. एन इकोनॉमी is in equilibrium, find marginal propensity, to consume from the following. National income is given. National income is given 2000 and autonomous consumption is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 is given 400 and investment expenditure is 1
अब इसमें देखो आपका, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपका इक्वेशन है नेशनल इनकम इक्वल टू आपका होता है, यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन, ये आपका नेशनल इनकम इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस आपका होता है एमपीसी मार्जिनल प्रोबेंसी टू कंज्यूम वाई प्लस आपका होता है आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसमें देखेंगे नेशनल इनकम स्पेंड इन एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, जब आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। फाइंड आउट मार्जिनल प्रोबेंसी टू कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेशनल इनकम इज गिवन 2000 एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल टू आपका 400, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू आपका है 200। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एमपीसी कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 2000 इक्वल टू 400 प्लस एमपीसी इनटू आपका है 2000 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका 200, ये आपका हो जाएगा 2000 इक्वल टू 600 प्लस 2000 एमपीसी। 600 को ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो आपका 2000 माइनस 600 इक्वल टू 2000 एमपीसी। यहाँ पे देखो आपका 1400 इक्वल टू 2000 एमपीसी, देयरफॉर एमपीसी इक्वल टू 1400 अपॉन 2000 कैंसिल आउट, इसको कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 7/10, ये आपका हो जाएगा 7/10, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा एमपीसी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका 0.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगेन अब इसमें देखो जैसे आपका यहाँ पर आपका इनकम इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोबेंसी टू कंज्यूम इनटू वाई प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें आपका नेशनल इनकम इज गिवन 2000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज गिवन 400 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन 200। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे आपका इसमें देखो y इक्वल टू आपने पढ़ा होगा c प्लस s, बट यहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो है इसमें आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपका इनकम इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस आपका एमपीसी इनटू वाई प्लस आई, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2000 इक्वल टू 400 प्लस एमपीसी इनटू 2000 प्लस 200, 400 प्लस 200 गेट 600। इसको हम अगेन इसको 600 इधर एलएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, 2000 माइनस 600 गेट 2000 एमपीसी, 1400 इक्वल टू 2000 एमपीसी, एमपीसी इक्वल टू 1400 अपॉन 2000, 20 कैंसिल आउट होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 14 टू 7 होगा, 22 डिवाइड बाय 10 होगा, तो आपका 7/10, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 0.7। एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, मार्जिनल प्रोबेंसी टू कंज्यूम इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.7। दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स आप लोग उसको कॉपी में सॉल्व कर लेंगे।
अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग उसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए इसमें। एंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम calculate national income, calculate national income from the following. From the following क्या आपको गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, autonomous consumption equal to 100 and marginal probability to save, marginal propensity to save equal to आपका है 0.8 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू आपका है 100। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसमें आपका है 200। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नहीं है इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज गिवन 100 एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव DMPS इज गिवन 0.8, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I इज गिवन 200। सॉल्यूशन देखो आप, यहाँ पे देखो आपका इनकम इक्वल टू C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन MPC Y प्लस आपका होता है I, या इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R इनकम इक्वल टू C बार प्लस 1 माइनस MPS इनटू Y प्लस I। अगर इसमें MPS गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, MPC गिवन होगा इस फार्मूला यूज करके, या डायरेक्ट आप जो है उसमें आप लोग जानते हैं MPC, यू नो दैट MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो MPC क्या हो रहा है, MPC इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इक्वल टू आपका 0.2। यहाँ से तो वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो आपका नेशनल इनकम आपको फाइंड करना है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ पे देखो आपका C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका गिवन है 100 और उसमें आपका इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका गिवन है, ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये आपका है 200 और उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये आपका इसको C बार कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 100 है। यहाँ से हम लोग इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें देखो इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 प्लस MPC की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.8 Y प्लस आपका यहाँ पर 200। यहाँ का इनकम इक्वल टू 100 प्लस 0.2 Y प्लस आपका हो जाएगा 200। इनकम इक्वल टू 300 प्लस 0.2 Y। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ से वैल्यूज को y को एक साइड में ट्रांसपोज करते हैं, y माइनस 0.2y इक्वल टू 300। यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 माइनस 0.2 y इक्वल टू आपका 300। अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.8, ये आपको
यहाँ पे देखो मार्जिन प्रोबेबिलिटी टू सेव आपका 0.8 है और आपके इसमें इनकम गिवन नहीं है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका है 100, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका 200, तो बोथ हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब इसको 0.8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका देखो मैच हो रहा है नहीं, 1500 के अबाउट नियर आना चाहिए। यहाँ पे 0.2 से डिवाइड करना था। एक मिनट क्वेश्चन चेक करते हैं। सॉरी, मार्जिन प्रोबेबिलिटी टू से की वैल्यू यहाँ पर है ये 2 गिवन है। यहाँ पे मार्जिन प्रोबेबिलिटी टू से की वैल्यू 2 है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर देंगे। जैसे मार्जिन प्रोबेबिलिटी टू से की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 गिवन है, इसको हम चेक करेंगे। ये आपका हो जाएगा 0.8, यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, आपको हो जाएगा 0.2, यहाँ पे आपको हो जाएगा 0.8 और यहाँ पर आपको हो जाएगा 0.8। यहाँ पे अगर हम इसको जो है चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे आपका 0.2 नहीं 0.8 होगा, ये आपका हो जाएगा 0.8। इसको हम डिवाइड कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0.2y का टू आपका 300, y का टू हो जाएगा 300 अपॉन 0.2, इनकम इक्वल टू आपका हो जाएगा 1500। ये आपका आंसर होगा। इसको एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। एंड इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम, जैसे आपका जब कोई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज गिवन 100 एंड मार्जिन प्रोबेबिलिटी टू सेल इज गिवन 0.2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन 200। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग उसमें आते हैं, इनकम इक्वल टू आपका सी बार प्लस एमपीसी वाई प्लस आई। यहाँ पे इनकम इक्वल टू सी बार क्या होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सी बार। मार्जिन प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय एमपीसी एंड आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस इक्वेशन में वैल्यू है पुट करेंगे। यहाँ पे देखो सी बार आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन 100, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन 200, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो आपका जैसे यहाँ पे एमपीसी आप इसमें लिखिए एमपीसी इक्वल टू होता है 1 माइनस एमपीएस। यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू गिवन है 0.2, ये आपका 1 माइनस 0.2 तो आपका एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8y। इन दो 200 और 100 को ऐड कर देंगे 300 हो जाएगा। y इक्वल टू 300 प्लस 0.8y होगा, तो y की तरफ ट्रांसपोज करेंगे हम लोग एलएचएस में, y माइनस 0.8y इक्वल टू 300 होगा। 1 माइनस 0.8 y इक्वल टू 300, अगेन 0.2 y इक्वल टू आपका 300। अब इसमें y इक्वल टू 300 अपॉन 0.2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपकी इनकम कितनी होगी 1500। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इन एन इकोनॉमी
इन इक्विलिब्रियम ऑल कंडीशन में आपका जैसे कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आपकी जो इकोनॉमी होगी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें देखते हैं इन एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें आपका डेटा है नेशनल इनकम इक्वल टू 800 marginal propensity to save MPS equal to 0.3 and autonomous consumption इक्वल टू गिवन 100। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेशनल इनकम इज गिवन 800, मार्जिनल प्रोफिट टू सेव इज गिवन 0.3, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज गिवन 100। सॉल्यूशन इसमें देखो यहाँ पे आपका इनकम इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस आपको हो जाएगा एमपीएस 1 माइनस एमपीएस वाई प्लस आपको हो जाएगा आई, या इसी को हम लोग है यू नो दैट 1 माइनस एमपीएस इक्वल टू एमपीसी मार्जिनल प्रोफिट का जो होगा आर यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी वाई प्लस आपका आई। इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो आपका एमपीएस की वैल्यू गिवन है 0.3, यहाँ पे आपका हो जाएगा इनकम इज गिवन आपका 800 है। नेशनल इनकम इज गिवन 800 इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 प्लस 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू 0.3 इनटू 800 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 800 इक्वल टू 100, यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस 800 माइनस आपको हो जाएगा, या इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे 0.7 इंटू 800 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देन 800 equal to 100 plus 560 plus investment expenditure 800 equal to 660 plus investment expenditure। यहाँ पे आपका investment expenditure equal to 800 minus 660 होगा। सेपरेट कर लीजिए इसको जो है ये आपका हो जाएगा 140, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा 140 होगा। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसको हम ऑलवेज में कैपिटलाइज सेपरेट करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू 140। दिस इज योर आंसर। ओके, an economy is in equilibrium calculate investment expenditure from the following data। national income is given 800, marginal propensity to save MPS is given 0.3, autonomous consumption equal to 100। तो you know that MP 1 minus MPS equal to MPC, यहाँ पे आपका इसका यूज करेंगे इनकम इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार 1 माइनस एमपीसी 1 माइनस एमपीएस मींस एमपीसी होगा प्लस यहाँ पे आई हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू नेशनल इनकम इज गिवन 800 प्लस 100 प्लस 1 माइनस 0.3 इनटू 800 प्लस इन्वेस्टमेंट
में देखेंगे कि 800 होगा प्लस 100 1 माइनस 0.3 0.7 into 800 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 प्लस इसको जो है 8 7 जा आपका 560 ये आपका हो जाएगा 560.0 इसको ऐड कर लेंगे आपका 660। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसको इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आपका 800 माइनस 660 वो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 140 आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।